Shifting our focus, as many as 40 workers are still trapped under the debris of the collapsed under construction tunnel on the Yamunotri National Highway in Uttarakhand's Uttarkashi. It's the fifth day of the rescue operations, but the authorities have not been able to rescue the trapped workers as yet. According to the details, at present, debris along more than 50 meters is still lying ahead of the trapped laborers, and the said section has been reported to be extremely weak. The rescue teams are trying to prepare an escape tunnel through the debris, and a second auger drilling machine has been brought to the site from Delhi after the first one broke down. The Chief Minister also held a review meeting to review the rescue operations progress. क्योंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। क्योंकि भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी, निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। हम इन सभी की समीक्षा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहां से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं, लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं। Well, it's the fifth day of the rescue operations and a little bit of a setback for those involved in the rescue operations yesterday when the auger machine brought to the drill through the rubble and create a passage struggled to carry out the task, leading to tunnel workers and locals protesting outside the spot as well against the administration and the construction company. The rescue plan though remained the same. They were using the trenchless technique, creating a passage with 900 mm wide mild steel pipes that the workers can crawl through. That's the rescue plan that is in place. But as the operation to save 40 workers trapped inside this under construction tunnel in Uttarkashi has entered the fifth day, rescuers have also brought in state-of-the-art American-made drilling equipment with the auger. So all efforts really being made to ensure that the workers trapped inside for the last 5 days can be rescued at the earliest. Barkha also gets us more details from Uttarkashi on what's happening in the kind of rescue operations that have been ongoing. 12 नवंबर की सुबह से 40 मजदूरों की जान जो है वो पीछे ये जो टनल आप देख पा रहे हैं उसमें मौजूद मलबे के पीछे फंसी हुई है। लगातार प्रयास यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से ITBP, BRO, NDRF, SDRF, इनमें 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। अभी फिलहाल देखिए जो मौजूदा सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि अमेरिकन ऑगर मशीन जो है वो देर रात यहां पर पहुंची, उसको इंस्टॉल करने का पूरा काम जो ये हैवी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महज कुछ ही घंटों में वो काम जो है वो पूरा होगा और उसके बाद वो मलबा जो हटाने में इतनी ज्यादा समस्याएं यहाँ पर सामने आ रही है टीम्स को, वो खत्म आखिर होंगी। धीरे धीरे कर जो मलबा है उसमें वहां 5 मीटर 1 घंटे में वो पूरा मलबा जो है वो 1 घंटे में हटाती हुई नजर आएगी। 5 मीटर का जो दायरा है मलबे का 1 घंटे में उसको साफ करेगी और उसके बाद जो पूरे पाइप्स हैं वो वहां पर लगाए जाएंगे और धीरे धीरे कर उनकी वेल्डिंग की जाएगी। मान लीजिए आप कम से कम 15 से 16 घंटे का ये पूरा प्रोसेस, और जिस तरह एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वक्त उसमें और भी ज्यादा लग सकता है। Like I said, protests also erupted at the tunnel site as rescue operations continued into the 4th day yesterday. The workers, the family members of those trapped, raised slogans demanding immediate evacuation of the trapped workers. मेरा बेटा है विजय कुमार, 20 साल का है सर। 20 साल का है जी। रात को हुई थी, थोड़ा सा बात किया था लड़के ने, हमने उसको हौसला दिया कि सब ठीक है, हो जाएगा, आज रात तक जो है आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। खाना पानी सब मिल रहा है उसे वहाँ? हाँ मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा जो भी है, जैसे भी हल्का फुल्का वो दे रहे हैं। 12 नवंबर की सुबह से 40 मजदूरों की जान जो है वो पीछे ये जो टनल आप देख पा रहे हैं उसमें मौजूद मलबे के पीछे फंसी हुई है। लगातार प्रयास यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से ITBP, BRO, NDRF, SDRF, इनमें 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। अभी फिलहाल देखिए जो मौजूदा सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि अमेरिकन ऑगर मशीन जो है वो देर रात यहाँ पर पहुंची, उसको इंस्टॉल करने का पूरा काम जो ये हैवी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महज कुछ ही घंटों में वो काम जो है वो पूरा होगा और उसके बाद वो मलबा जो हटाने में इतनी ज्यादा समस्याएं यहाँ पर सामने आ रही है टीम्स को, वो खत्म आखिर होंगी। वो असंभव
संभव जो नजर आ रहा है वो संभव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोगों की निगाहें लगातार इसी खबर पर टिकी हुई हैं। वो 40 मजदूर जो पीछे मदद की आस लगाए बैठे हैं, जिन तक खाना तो पहुंचा दिया गया, लेकिन अभी उन्हें बाहर निकालना है। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मलबा जो वहां लगातार बना हुआ है, जिसे हटाने के प्रयास जब किए गए तो ऊपर से और मिट्टी धंसते हुए इन परेशानियों को बढ़ा दिया गया। वो अमेरिकन ऑगर मशीन जो यहां पर पहुंची है, देखिए किस तरह से वो काम करने वाली है। धीरे धीरे कर जो मलबा है उसमें वहां 5 मीटर 1 घंटे में वो पूरा मलबा जो है वो 1 घंटे में हटाती हुई नजर आएगी। तो वो आज जो पिछले कई दिनों से बंधी हुई है वो और ज्यादा मजबूत होगी। वो आज की ये 40 मजदूर बहुत जल्द बाहर होंगे।